Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am taking the further part from the chapter Admission of a Partner. And in my last video I explained you the calculation of new profit sharing ratio and the calculation of sacrificing ratio with different methods. So today I am taking the next adjustment from the admission, that is your accounting treatment of goodwill. Okay students, so let's start without wasting time. So in admission of a partner chapter only, the next adjustment which is required at the time of admission of a partner is your accounting treatment of goodwill. So in this, what we do, how we make the treatment, or you can say what entries will be passed at the time of goodwill valuation in the admission chapter. So in this, generally we are discussing here only the accounting treatment, not the valuation. Valuation part is a separate chapter which I have discussed in my earlier videos. So I will share the link of that particular playlist, that means the valuation of goodwill part, in my description box. So you can watch that also, and in that manner you will be able to calculate the goodwill amount with the methods of valuation. Okay, so जो उसमें आपके valuation की जो मेरी videos है उसका link मैं आपको share कर दूंगी, तो आप उनको देख के goodwill को value कर सकते हैं. But how we have to make the accounting treatment, that I am taking in my today's video. So first part, there are different conditions, or we can say there are different circumstances or situations the goodwill is brought by the new partner. इतना तो आपको सबको पता है गुडविल क्या है. गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. व्हेन अ न्यू बिजनेस इज स्टार्टेड, एट दैट टाइम द रेपुटेशन इज नॉट देयर, बट व्हेन द बिजनेस ग्रोज time by time, or you can say gradually it grows, so the reputation increases. And after establishment of the business, if a new partner is admitted in the business, so he has to pay the value of reputation which the older partner or the old partners have maintained, or you can say worked hard to maintain that position. ओके, यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने जितना मेहनत करने के बाद जो एक बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, तो जो उसकी रेपुटेशन की वैल्यू है वो नया पार्टनर जो आएगा उस वैल्यू को वो उनको पे करेगा. सो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल. सो इसमें क्या होता है, जो आपने वैल्यूएशन सीखा उसमें आपने बिजनेस की गुडविल को वैल्यू किया. लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम नए पार्टनर के शेयर की बात कर रहे हैं. लाइक अगर टोटल गुडविल की वैल्यू एक फर्म की 60,000 आती है with the different methods, whether average profit method, super profit method, capitalization method, किसी भी मेथड से आप निकालते हैं. आपने 60,000 अमाउंट निकाला. अब अगर जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर 1/4 है, तो द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1/4 बेसिस. दैट मीन्स ही विल ब्रिंग ओनली 15,000. 60,000 इंटू 1/4, दैट मीन्स 15,000. वो कितना लेके आएगा, 15,000. सो अब उस 15,000 को आप ट्रीट कैसे करेंगे और जनरल एंट्रीज क्या पास करेंगे, दैट आई एम डिस्कसिंग हियर. सो सबसे पहली कंडीशन है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली. यू नो द मीनिंग ऑफ प्राइवेटली, दैट मीन्स जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल का जो प्रीमियम दे रहा है वो बिना किसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के प्राइवेटली, विदाउट रिकॉर्डिंग इट इनटू द बुक्स, ही इज पेइंग इट. ओके, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री. नो एंट्री मीन्स कोई एंट्री नहीं आएगी. सो यू हैव टू राइट नो एंट्री. अगर ऐसी सिचुएशन आपके क्वेश्चन में दी है कि द गुडविल अमाउंट और द प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल का अमाउंट जो न्यू पार्टनर पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल. अगर वो उसको प्राइवेटली पे कर रहा है, दैट मीन्स विदाउट रिकॉर्डिंग इन अकाउंट, सो दैट मीन्स नो रिकॉर्डिंग विल बी डन. सो हमारी क्या आ जाएगा, नो एंट्री. सेकेंड कंसेप्ट या सेकेंड सिचुएशन आई कैन से नाउ, when premium for goodwill brought in cash or check and retained in the business. अब जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम को कैश में लेके आ रहा है या चेक से लेके आ रहा है या चेक से पे कर रहा है और वो बिजनेस में ही रह रहा है, तब आपकी दो एंट्रीज पास होंगी. सो व्हाट विल बी दैट एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री विल बी और कैश और बैंक. अगर तो कैश लेके आ रहा है तो कैश डेबिट कर देंगे, बैंक यानी चेक लेके आ रहा है तो आप बैंक डेबिट कर देंगे. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड to premium for goodwill account.
तो हमारे यहाँ पे क्या हेड आया, नया हेड आया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, उसको हमने क्रेडिट किया क्योंकि जो कैश या बैंक आया वो किस अकाउंट में आया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इसी प्रीमियम को आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, सो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो उससे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है वो भी आप उसमें समझ सकते हैं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो सिर्फ गुडविल के लिए ही निकाली जाती है। सो जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर पे करेगा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या आप कह सकते हैं ओल्ड पार्टनर, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो आपकी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, अगर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो करंट अकाउंट आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? सो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहा है, और किस अकाउंट से मिल रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से। ओके, सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि व्हेन द पार्टनर इज ब्रिंगिंग इट इन कैश और विद बाय चेक, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री विल बी योर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर आपके 3 पार्टनर्स हैं और 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ 2 के अकाउंट में वो जाएगा, जो तीसरा जो नहीं सेक्रीफाइस कर रहा उसके पास नहीं जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या मेंशन करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया ये? और करंट और कैपिटल का फर्क आपको हमेशा से पता है, मैंने अपने फंडामेंटल्स वाले सारे वीडियोस में ये चीज डिस्कस की है कि कैपिटल तब लिखा जाता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, और करंट अकाउंट तब लिखा जाता है जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर, थर्ड सिचुएशन, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब है वो किसी फॉर्म में लेके आ रहा है, लाइक वो कोई एसेट लेके आ रहा है, कोई मशीनरी लेके आ रहा है, या कोई वैन या व्हीकल, या आप कह सकते हैं फर्नीचर की फॉर्म में या स्टॉक की फॉर्म में लेके आ रहा है। तो नहीं, जो भी एसेट की फॉर्म में वो लेके आ रहा है, कैश नहीं लेके आ रहा। क्लियर हो गया? काइंड का मतलब है वो कैश में उसको नहीं लेके आ रहा है। तब आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, जो भी एसेट वो लेके आ रहा है उसको आप डेबिट कर देंगे। जैसे अगर वो कैश ला रहा था, कैश इज ऑल्सो एन एसेट, है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है? यानी जो भी एसेट बिजनेस में आ रही है वो डेबिट होगी और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, और अगर हम स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट या बिल्डिंग या आपका स्टॉक की बात करते हैं तो वो भी आपके एसेट्स हैं, तो उनको भी आप डेबिट करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा, यानी कंडीशन इज कंप्लीटली सेम। ओके, दूसरी एंट्री अगेन सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और कैपिटल और करंट अकाउंट। तो सेम एंट्री आएगी, जो आपकी कैश में आ रही थी वही यहाँ आएगी, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या उनके उसमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। क्लियर है? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया, सेकेंड एंट्री दोनों में सेम है। अब आती है हमारी फोर्थ कंडीशन, when premium for goodwill brought in cash and is withdrawn by the old partners। अब वो प्रीमियम कैश में ही लाया और उसी कैश को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अगर वो काइंड में लाएगा तो काइंड को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टॉक आपका बिजनेस में आ गया वो बिजनेस के यूज के लिए है, दे विल नॉट विड्रॉ इट। लेकिन अगर वो कैश में लेके आता है बट ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, यानी जितना पैसा उसने दिया उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया, या हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, पार्टली भी वो विड्रॉ कर सकते हैं और फुल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो आपकी इसमें फर्स्ट 2 एंट्रीज विल रिमेन सेम। फर्स्ट एंट्री क्या थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये 2 एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में रखने तक की एंट्री ये है। अब अगर वो विड्रॉ करते हैं तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
ओके अगर वो कैश में विड्रॉ कर ले रहे हैं या बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो टू कैश और बैंक आ जाएगा। तो कैश या बैंक क्रेडिट में आ जाएगा जब वो विड्रॉ करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जो पार्टनर विड्रॉ करेंगे। क्लियर? अगर उन्होंने हाफ विड्रॉ किया तो हाफ की एंट्री आएगी, फुल विड्रॉ किया तो फुल की एंट्री आएगी। थर्ड वाली, फर्स्ट टू एंट्रीज विल रिमेन सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एंट्री में अगर वो हाफ विड्रॉ करते हैं तो आप हाफ का अमाउंट डाल देंगे, और अगर पूरा विड्रॉ करते हैं तो फुल अमाउंट से एंट्री डाल देंगे। सो एंट्री क्या बनी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर? अब हम लेते हैं फिफ्थ सिचुएशन। फिफ्थ सिचुएशन क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट और द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश और इन काइंड या चेक, किसी भी फॉर्म में वो लेके नहीं आ पा रहा, दैट मीन्स ही इज अनेबल टू पे द अमाउंट, ये इसका मतलब है। ठीक है, तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? तब हमारी कैश और बैंक वाली एंट्री तो नहीं आएगी बिकॉज ही हैज नॉट पेड इट। तब हमारी सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, वो क्या होगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है? यानी जितना अमाउंट उसने गुडविल का देना था, क्योंकि उसने पे नहीं किया, उतने अमाउंट से हम उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ओके एंड जो पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट जितने अमाउंट से क्रेडिट होना था वो सेम होगा। ओके सो अब वो कौन पे करेगा? न्यू पार्टनर विल पे इट लेटर, या उसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस स्टैंड हो जाएगा। ओके सो व्हाट एंट्री विल बी देयर? एक ही एंट्री आएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगेन इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल के लिए आपको हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। सो होप ये 5 सिचुएशंस मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। इसके आगे वाला पार्ट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जब प्राइवेटली पे होगी तो नो एंट्री, ओके, और जब वो कैश या चेक में पे करेगा तो 2 एंट्रीज बनेंगी आपकी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये 2 एंट्रीज आ गई। अब अगर वो काइंड में पे करता है, काइंड में मतलब किसी भी एसेट की फॉर्म में, लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, तब हमकी एंट्री क्या बन जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देन नेक्स्ट एंट्री सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में अगर वो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उस गुडविल अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो फर्स्ट 2 एंट्रीज विल रिमेन सेम। थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। अगर कैश से विड्रॉ करते हैं तो कैश, और अगर बैंक से विड्रॉ करते हैं तो बैंक आ जाएगा इन द क्रेडिट। ओके, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लास्ट सिचुएशन में जब न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट और कैन नॉट पे द अमाउंट ऑफ कैश, अमाउंट इन कैश फॉर गुडविल, गुडविल के लिए वो नहीं पे कर पाता है, तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनती है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक ही एंट्री आएगी। सो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। सो होप you must have understood the accounting treatment of goodwill, and you must like the video, so share it with your friends, and see you in my next video. Keep watching the channel and keep solving the numericals at home, and अगर कोई difficulty आती है तो आप पूछ सकते हैं। So students, see you in my next video. Till then, bye bye.